हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टूडेंट की स्टोरी के बारे में जो कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। वो अपने कॉलेज के 4th ईयर में है इंजीनियरिंग के, और उसको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। वो करना बहुत कुछ चाहता है और उसके सामने रोड मैप भी बहुत सारे हैं। तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया कि उसको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। वो कर भी रहा है बहुत कुछ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में क्या करना है उसको। ठीक है गाइस, जो उसके क्वेश्चन थे ना उस लड़के के, वो मोस्टली ज्यादातर बच्चों के क्वेश्चन होते हैं। इसलिए मैंने उसकी स्टोरी को इंक्लूड किया इस वीडियो में, ताकि एक वीडियो के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट को आंसर मिल जाए। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखना, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको करना क्या है। अगर आप अपने करियर के स्टार्टिंग में हो तब भी आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल वीडियो है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता चलेंगी आपको करना क्या है उसके लिए। ठीक है, तो पहले मैं ये करूंगा, पहले उसकी मैं ऑडियो चलाऊंगा, उसकी ऑडियो में उसकी स्टोरी सुन लेना आप लोग। जिसको स्टोरी नहीं सुननी है उसके लिए मैं अभी यहाँ पे एक टाइमलाइन लगा दूंगा कि जहां पे मेरा आंसर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगर जिसको उसकी पूरी स्टोरी सुननी है तो वीडियो कंटिन्यू करना है यहाँ से। जिसको सीधा जंप करना है कि मेरे कंक्लूजन के बारे में या फिर मेरे मेरे उसके लिए क्या फीडबैक है, वो अगर है तो यहाँ पे टाइमलाइन नीचे आ रही होगी, आप उस टाइमलाइन पे डायरेक्टली जंप कर सकते हो उसको स्किप करके उसकी स्टोरी को। ठीक है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि उसकी स्टोरी आप खुद ही उसकी वॉइस में सुनो, फिर हम वीडियो के बारे में बात करेंगे और हम उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। गुड आफ्टरनून सर। मेरा हिंदी खराब है क्योंकि नेटिव लैंग्वेज हिंदी नहीं है, इसलिए इंग्लिश में मैसेज सेंड कर रहा हूँ। फर्स्ट आई विल गिव ब्रीफ इंट्रो अबाउट माई सेल्फ. Like my graduation batch is from 2022 to 2026 and my graduation will be completing by the month of May this year. So in my 3 years of BTech, like in my 4 years of BTech, like first year, second year, and third year, I didn't do anything. I just kept watching the roadmaps from the YouTube and decided to do full stack development and done only front end only, and then left in between. And like I will say that by 2025 I just did HTML, CSS, JavaScript and Python, and like basic data pre-processing, like I just touched them and left, like it went. And in the fourth year I decided to do DSA compulsorily. So in the month of June I took one DSA course, and in July I started and did for only 1 month and left after that due to college projects and I need to attend for the college mid exams, all those things. And in December I completed my 7th semester exams also. Now I have only one semester left, so I decided to go for DSA and AIML. There is nothing other, there is no confusion, like nothing to get away from this. So from January I resumed the course which I took, that is Akshay's Namaste DSA course, which is very good enough, and I am doing that course without getting distracted. From January to today I'm doing continuously every day, and I'm clear about doing DSA. Like for 6 months, like until unless I complete the course, I just follow that course without watching any kind of YouTube videos or any other roadmaps or any other thing, just following the course, doing the lead code problems myself. And I feel that it is enough, and I'm feeling that progress. I can also see improvement. And also when it comes to AIML, I was confused. So like at initially I saw all the roadmaps and they initially says about data processing only. So I started data processing in the month of January, and I started doing NumPy, Pandas, Matplotlib, and started working on small like data Kaggle data set. And on like I got to know about your course, and I approached you, I messaged in the group about your course, and you said, and I convinced myself to buy your course. Because I don't like to buy the courses, because in my BTech I took Python offline, Python full stack development, in which they just said 3 months, 2 months took for Python explanation and 1 month for Django, which I feel didn't worth for 13,000. And so I thought not to take any course. But after talking to you, like after having conversation with you, I decided to take your AIML course, and I took on January 14th. And then after, like I was doing DSA regularly, but AIML path I'm not clear at. I took your course, and I did up to data pre-processing modules, which I already done. So for revision purpose I did your course also. I did your course related to that topics. I finished those topics from your course. And then what happened is, like I'm confused. Like I've also asked you a doubt, like I got a confusion whether to go for data analyst or else just I can start ML. You said that data analysis is not required. So at that time I got stuck, and I got a clarity that not to get into data analyst, not to do Power BI, Excel, and all these things. So I focused on ML part only. Now in ML part, before starting that ML algorithms, like I'm confused like whether to go for maths, because whenever I open LinkedIn, like
everybody are ahead of me, like doing Gen AI, agentic AI, all those stuff, which I feel like I just feel like I'm behind. I'm here only. Like, how can I come to that level? And also, a lot of opinions is that everybody are doing AI ML, so it's better. Like, nobody is doing ML ops, so it's better to do ML ops. But I feel like to do ML ops, also ML is required. Like, AI ML is so huge. Like, I'm confused. Like, in which direction I need to go? Like, before starting traditional ML, how much maths is required? Like, I just feel like maths is required, like, in order to, sir, I can't decide what to do. Whether, like, if maths is required, you said that maths is not required, and someone says maths is required. I'm unable to, like, uh, stick onto one thing, and I'm looking for long term. For DSA, there is no distraction. I've got a clarity on what to do. Just going through the course that I took for AIML, your course, but like, how should I stick to the plan? Like, how to plan? And also, I'm unable to manage. Like, I'm doing this DSA and I'm unable to give time for you, your course, doing your course, because first is time and second one is confusion. These two making not making me to resume your course also. Like, I got stuck with there because and I am improving a lot. Like, I'm not even opening the YouTube, watching random roadmaps. I stopped that, and no Instagram, and I'm just being so productive, not going to college also, because it's not important to go to college since there is no attendance in this final year. So from morning to evening 7 o'clock, 8, evening 7 or 8, I'm not even touching the mobile, unless it is required. It is important. And after that, I'm just opening LinkedIn. Whenever I open LinkedIn, I just saw this kind of opinions or this kind of roadmaps, paths related to AIML, which making me confused, and I unable to give time for AIML. Total time is getting on DSA solving, problem solving only. So please, like, I hope this message is so long. Thank you for listening up to this, and what you would suggest me to do for my situation. Thank you, sir. तो गाइस आपने उसकी स्टोरी सुननी होगी, और जिसने नहीं सुनी है मैं उसको एक बार समराइज कर देता हूँ। ये एक स्टूडेंट है इंजीनियरिंग का, एक टायर 3 कॉलेज का, और ये अभी अपने कॉलेज के 4th ईयर में है। ठीक है, इसने 3 साल कुछ नहीं किया ज्यादा। अब इसको 4th ईयर में और लास्ट सेम में आके याद आया इसको कि इसको पढ़ाई भी करनी थी कुछ कुछ। ठीक है, तो इसने थोड़ा बहुत जो भी मनस्टैक या जो रिएक्ट वगैरह स्टार्टिंग में HTML CSS जो भी सब करते हैं, थोड़ी थोड़ी इसने थोड़ी बहुत की बस फॉर्मेलिटी के लिए स्टार्टिंग में। बट अब इसको रियलाइज हो रहा है कि लास्ट सेमेस्टर में जब इसको लग रहा है कि अब इसको जॉब मार्केट में जाना है, तो एकदम से इसके जो सीरियसनेस है वो निकल के आई है सारी। और अभी जनवरी से इसने डीएसए पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। इसने एक डीएसए कोर्स भी बाय कर रखा है और उसमें डीएसए पढ़ रहा है। डीएसए इसने स्टार्ट किया जनवरी से, और इसने थोड़ी सी AIML भी करी है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो मतलब उसमें आगे कैसे बढ़ना है इसको। उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन हो रखे हैं इसको। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसने मेरा कोर्स भी बाय किया है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा ही पढ़ा है इसने। उसके बाद ये बीच में डीएसए कर रहा है, कभी ये AIML भी कर रहा है, और ये कंफ्यूज है अभी। ठीक है, तो ये इसकी एक समरी मैंने आपको दे दी है। अभी हम इसके सोल्यूशन पे चलेंगे वन बाय वन, जो इसने क्वेश्चन किए हैं या जो भी इसकी डाउट्स है उसके बारे में वन बाय वन उनको क्लियर करते हुए चलेंगे। देखो, पहली चीज ये है कि ये 3 साल तक बहुत सारे रोड मैप फॉलो करता था। ठीक है, सिंसियर स्टूडेंट है हालांकि, लेकिन इसको इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गई है। 3 साल तक से ये रोड मैप सारे फॉलो कर रहा है, भैया दीदी को फॉलो कर रहा है, सबको फॉलो कर रहा है, और उसको समझ में नहीं आया कि उसको करना क्या है। फिर उसने डेवलपमेंट छोड़ के थोड़ी सी डेवलपमेंट की फॉर्मेलिटी के लिए फिर उसने डीएसए पे ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, डीएसए का कोर्स भी बाय कर लिया कोई। ठीक है, इंस्पायर होके। तो यार देखो, सिंपल सी बात है, मैंने कई वीडियोस में बताई है कि जो कोई आपको कोई एडवाइस दे रहा है, मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी, एक लोमड़ी और एक ऊंट वाली। उसमें था कि एक लोमड़ी ऊंट से सलाह लेती है, मतलब ऊंट की सलाह को लोमड़ी अपनी लाइफ में फॉलो कर लेती है, और वो लोमड़ी डूब जाती है पानी में। अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी। सिमिलरली जब आप भैया दीदी या किसी का भी आप कोई भी एडवाइस लेते हो ना, कि किसी का 40 लाख का पैकेज लग गया, 30 लाख का लग गया, उस स्टूडेंट का पहले आप बैकग्राउंड जाके देखो। अगर वो NIT IIT से है तो उसके लिए वो चीज वैलिड है। लेकिन आप किसी टायर 3 कॉलेज में से पढ़ रहे हो, किसी भी रैंडमली टायर 3 कॉलेज में से आप पढ़ रहे हो, और आप डीएसए के पीछे पड़े हो, अपना टाइम लगा रहे हो, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डीएसए आपसे आपको बहुत तगड़ी जॉब लग जाएगी। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, जब आप किसी टायर 3 कॉलेज से हो ना, तो फैंग कंपनी आपका CV ना एज ए फ्रेशर आपको सिलेक्ट ही नहीं करेगी। आपको कॉल्स ही नहीं आएंगी। बहुत ही रेयर चांस है कि आपको कोई कॉल आए, आपका CV सिलेक्ट ही नहीं होगा, आप कितना भी डीएसए कर लो। मैं मानता हूं, चलो आपने बहुत अच्छा डीएसए कर लिया होगा, आप पूरे धुरंधर बन गए डीएसए में, लेकिन आपका CV शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। HR को CV में देख के तो नहीं पता चल रहा है ना आपका कि आप अपने डीएसए में इतने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, या फिर डीएसए में आपको इतना आता है। ठीक है, क्योंकि डीएसए लिखने का तो सबको लिखता है अपने CV में। HR उसी को कॉल करेगी ना, जो फैंग कंपनी है, उनके पास
बहुत सारे सीवी आते हैं, ठीक है, तो एचआर आपको नहीं बुलाने वाली। आप किसी भी रैंडमली चंपू कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से किसी ने कुछ भी कर रखा होगा, आप कितना डीएसए कर लो, आपको बहुत ही रेयर चांस है कि आपको फैंग कंपनी कॉल आएगी। और अगर आप जॉब मार्केट में जाओगे जॉब लेने के लिए, तो आपको डेवलपमेंट आनी चाहिए, वेब डेवलपमेंट पहले, सबसे पहले। मैंने बहुत बार बोला कि आपको वेब डेवलपमेंट ना एक इंजीनियर के लिए ABCD है। अगर आप वो नहीं कर रहे हो और उसके अलावा आप AIML भी कर रहे हो या फिर आप डीएसए भी कर रहे हो, तो आप बेवकूफी कर रहे हो। पहला स्टेप होता है वेब डेवलपमेंट कंप्लीट करना, उसके बाद प्रोजेक्ट बनाना, उसके बाद आप कुछ सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो लड़का है, इसने ये गलती कर रखी है, अभी भी कर रहा है वो, अभी भी वो डीएसए के पीछे टाइम वेस्ट कर रहा है। मेरे हिसाब से सडनली उसको 3-4 महीने बाद रियलाइज होगा, वो डीएसए अपने अच्छे से कर लेगा। लेकिन जब उसको इंटरव्यू देने जाएगा, बड़ी कंपनियों में उसका सीवी सिलेक्ट नहीं होगा, फैंग वगैरह में जहां पे डीएसए चलता है। जहां पे छोटी कंपनियों में है, जहां पे इसको सीवी सिलेक्ट होगा, वहां उसको वेब डेवलपमेंट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहां वो वेब डेवलपमेंट पे क्वेश्चन कर नहीं पाएगा क्योंकि उसने डेवलपमेंट नहीं कर रखी है, ठीक है। तो ये इसको मेरी एडवाइस है कि भाई पहले वेब डेवलपमेंट कंप्लीट करो, डीएसए को साइड रख दो। डीएसए आपको सिर्फ इंटरव्यू में काम आता है, डीएसए, और वो भी फैंग कंपनी है, बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए। लेकिन जो वेब डेवलपमेंट है वो आपको इंटरव्यू में काम आएगा, और वो आपको रियल में जब आप जॉब करोगे तब भी काम आएगा, ठीक है। तो पहले डेवलपमेंट कंप्लीट करो, उसके बाद आपको डीएसए या AIML पे जाना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। पहले आपको वेब डेवलपमेंट कंप्लीट करना है, उसके बाद उस पर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, और उसके बारे में बहुत सारी वीडियोस हैं। नहीं है तो मैं इस लड़के को पर्सनली गाइड भी कर दूंगा उसको कैसे करना है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि डीएसए करने से बेटर है कि पहले वेब डेवलपमेंट अपने अच्छे से कंप्लीट करे, एक फुल स्टैक लेवल की वो डेवलपमेंट कंप्लीट करे, और डीएसए पे भी टाइम वेस्ट नहीं करे। जो बच्चे कुछ महीने हैं उस पर डीएसए करता रहेगा, बाद में सीवीज का शॉर्टलिस्ट नहीं होगा फैंग कंपनीज के लिए, ठीक है। तो ये एडवाइस है, डेवलपमेंट स्टार्ट करो सबसे पहली। सेकंड चीज इस लड़के ने बोली है कि इसने AIML पहले भी कहीं से किया था, ठीक है, इसने किया था, वहां तक इसने डेटा प्री प्रोसेसिंग तक कर लिया था, क्योंकि सबने इसको ये बताया कि डेटा प्री प्रोसेसिंग तक कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसने मेरा कोर्स भी ज्वाइन किया AIML वाला, वो भी इसने डेटा प्री प्रोसेसिंग तक कर लिया, ठीक है। वहां तक इसने वो भी करके छोड़ दिया। तो भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि डेटा प्री प्रोसेसिंग में क्या मतलब, क्या तुम्हें वहां पे आगे जाके डर लग रहा है क्या? आगे कोई भूत बैठा है कि उससे आगे तुम बढ़ नहीं रहे डेटा प्री प्रोसेसिंग से आगे, ठीक है। या तुम ये बोलोगे अभी मेरे को प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन अगर तुम ये बोलोगे कि डेटा प्री प्रोसेसिंग तक करके बार बार तुम छोड़ रहे हो, तो ये तुम्हारी बेवकूफी है ना। उसके बाद जो मशीन लर्निंग में तो तुम्हें सुपरवाइज और अनसुपरवाइज एल्गोरिथम्स ही तो मेन चीज होती है, वहां तक तो तुम जा ही नहीं रहे। ना तुम लाइफ साइकिल कर रहे हो, ना तुम कोई भी जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि पूछे जाएंगे रियल कॉन्सेप्ट, वो तुम कोई नहीं कर रहे। डेटा प्री प्रोसेसिंग पहला स्टेप है मशीन लर्निंग का, तुम वहां पे जाके बार बार रुक रहे हो, फिर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरी जॉब लग जाएगी इसमें। तो भाई ऐसे नहीं होता। तुमने मेरा भी कोर्स जो बाय कर रखा है, तो प्लीज उसमें 50 वीडियो पड़ी हुई है, उसमें सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स है वो पूरे ऑलमोस्ट हो चुके हैं, अभी एक दो बचे उसमें सिर्फ। तो वो करो पहले, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज करने पड़ेंगे आपको। डेटा प्री प्रोसेसिंग पहला स्टेप है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि डेटा प्री प्रोसेसिंग कर लो, तो वो आपके साथ मजाक कर रहा है। आपको पूरा इसमें सुपरवाइज अनसुपरवाइज एल्गोरिथम्स करने पड़ेंगे। और जो भी चीज करने की है ना, वो मैंने कोर्स में पूरी लिस्ट कर रखी है, 1 by 1 मैंने हर वीडियो उसी स्टेप पे पढ़ा रखी है। आप तब भी फॉलो नहीं कर रहे तो कौन आपको जबरदस्ती फॉलो करवाएगा। मैंने सीरियल वाइज वीडियो बना रखी है जो आपको 1 by 1 इंटरलिंक्ड है, जो कि आपको करते हुए जाना है। उसको तो फॉलो करो यार। अगर आपको AML सीरियस में करना है तो पहले उसको फॉलो करो, ठीक है। मतलब वेब डेवलपमेंट के बाद जब भी जब भी AIML आपको करना होगा, तो उसी ऑर्डर में करना है जिसमें मैंने करवा रखा है, वो उसी ऑर्डर में है। चीजें मैंने करवाते हुए चल रहा हूं मैं आपको। जो आप सारे लेक्चर देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये लेक्चर इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, तो उसी ऑर्डर में पढ़ा रहा हूँ जिस ऑर्डर में पढ़ाना चाहिए। अब नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, नेक्स्ट ये कि मैंने इसको लग रहा है कि मैथ करना चाहिए नहीं करना चाहिए मशीन लर्निंग के लिए, इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। भाई देखो, जितना मैथ करना चाहिए ना, इस डिबेट मत पढ़ो कि मैथ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप अगर आपके पास तो मेरा कोर्स है पूरा, उस कोर्स का कंटेंट देखो। जब आप एल्गोरिथम समझाओगे ना, उसमें मैंने मैथ पढ़ाया है, ठीक है। जितना मैथ पढ़ना चाहिए ना उतना ही पढ़ाया है मैंने। जितना मैथ जरूरत होगी उतना मैथ पढ़ाया है, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो अगर हम ये बोलते हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि मैथ की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कुछ नहीं जरूरत है, वो भी गलत है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैथ की जरूरत है, तो वो भी गलत है। क्योंकि मैथ एक छुटकू सा पार्ट है जो कि जहां पे हमें यूज होता है, उसका छुटकू सा एक फॉर्मूला बनता है और छुटकू सा उसमें यूज हो जाता है वो, ठीक है। तो मैथ इतना बड़ा पार्ट नहीं है मशीन लर्निंग का। मैं सिंपली बता रहा हूं, मैंने पहले बताया कि मैथ वाली चीजें हैं वो साइकिट-लर्न लाइब्रेरी के थ्रू हैंडल होती है। अब इसमें फिर से कुछ स्टूडेंट्स आएंगे कि नहीं मैथ में तो हमें ये करना वो करना है। भाई आपको पहले जो चीजें कॉन्सेप्ट्स हैं, जो चीजें पहले सिंपल वाली है, वो चीज तो कर लो यार। मैथ में आपको मन कर तो कर लो ना, PhD कौन रोक रहा है भाई। आपको जितना मैथ में घुसना है, अगर हर एक चीज की बाल की खाल निकालनी है आपको जबरदस्ती की, तो आप निकालते रहना बाद में। लेकिन जिसमें इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा ना, उतना मैंने अपने कोर्स में पढ़ा दिया है प्रॉपर। अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है तो आप मेरे कोर्स में से पढ़ लो, मैथ भी उसके अंदर है, सब कुछ है, अपने कोर्स बाय कर रखा है, तो प्लीज उसको कंप्लीट कर लो भाई।
यही मेरी एडवाइस होगी। जब आप करने बैठोगे आपको इधर उधर नहीं देखना कि कोई मैथ, कोई बोल रहा है कि मैथ करना है, कोई नहीं करना है। भाई जो सामने कोर्स जिस बंदे ने बना रखा है उसने कुछ सोच के बनाया होगा, मैंने बनाया कुछ सोच के बनाया होगा, तो मैथ को उसको जस्ट फॉलो कर लो। इस स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत दिमाग चला रहे हैं, अपना एक्स्ट्रा दिमाग यूज कर लिया है। भाई इतना दिमाग यूज मत करो। सिंपली जो कोई टीचर है, या जैसे आप डीएसए वाला फॉलो कर रहे हो, इसी तरह आप मेरा वाला फॉलो कर लो। आपको मशीन लर्निंग 1 महीने के अंदर बहुत अच्छी खासी मशीन लर्निंग आ जाएगी। उसके बाद आप कोई मॉक इंटरव्यू दोगे तो आपके इंटरव्यू क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। आप चैट जीपीटी से मॉक इंटरव्यू कर लेना है, कहीं से भी कर लेना, मेरा कोर्स करने के बाद आपके मशीन लर्निंग वाले इंटरव्यू क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप इधर उधर मत देखो, मैथ वैथ के चक्कर मत पढ़ो। जितना मैथ पढ़ाना चाहिए वो मैंने वीडियो में पढ़ा रखा है उसमें, अपने सारे लेक्चर्स में, ठीक है। तो आपको सिंपली मशीन लर्निंग के लिए इधर उधर नहीं सोचना है, आपको चुपचाप आंख बंद करके उसको फॉलो करना है, सिंपल। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आता है कि सर मैं लिंक्डइन जब भी खोलता हूं तो मेरे को फोमो लगता है कि, और मेरे को लगता है कि मैं पीछे रह गया, सब लोग पता नहीं क्या क्या अचीव कर लिया सबने, ठीक है। और सब लोग कह रहे हैं कि कोई जेन एआई में कुछ बना रहा है, तो मेरे को लगता है कि मैं एआईएमएल कर रहा हूं, मैं क्या करूं, जेन एआई करूं, मशीन लर्निंग करूं, एमएल ऑप्स करूं, मैं क्या करूं। यार देखो सुनो, जो लिंक्डइन पे ना जो भी कोई अगर कर रहा है, लिंक्डइन पे आपके जो कनेक्शन है ना वो 2-3 हजार कनेक्शन होंगे शायद। मान लो अगर आप अपने टोटल कनेक्शन काउंट करना कितने कनेक्शन है। मान लो आपके 2000 कनेक्शन है, ठीक है, 2000 कनेक्शन में से ना 20 लोग भी नहीं होंगे जो कि रेगुलर एआई से रिलेटेड पोस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। वो घूम फिर के ना 5-10 लोग ही लगे रहते हैं एआई में, वही बार बार पोस्ट करे जा रहे हैं, कुछ कुछ बना रहे हैं डेमो, कुछ अचीव कर रहे हैं, कुछ सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो वो ऐसा लगता है जब भी हम खोलते हैं ना, ऐसा लगता है कि यार इसने भी ये कर लिया, अब ये कर लिया। तो अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट में 2000 लोग हैं अगर लिंक्डइन पे, उसमें से 20 लोग अगर कर रहे हैं ना ये, तो सिर्फ 1% लोग ही कर रहे हैं वो, ठीक है। वो आपको बार बार दिखाई दे रहा है। कभी किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने सर्टिफिकेशन ले लिया, प्रोजेक्ट बना दिया, कुछ डेमो बना दिया, किसी ने एआई पे कुछ ज्ञान दे दिया। बाकी जो 99% है ना वो कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी कुछ कर लोगे ना एआई में, तो आप टॉप 1% बन जाओगे, सच बता रहा हूं। अभी इतनी ज्यादा लो अवेयरनेस है अभी एआई के मामले में, ठीक है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये आपको चुपचाप लिंक्डइन वाली चीज को इग्नोर करके फॉलो करना है, आपको 1 बाय 1 लेके चीजों को आगे बढ़ना है। वो जो लोग आज पोस्ट कर रहे हैं ना वो बहुत दिनों से मेहनत कर रहे होंगे, हो सकता है वो 6 महीने से पढ़ रहे होंगे। तो अगर आप अभी जनवरी से स्टार्ट कर रहे हो अपना डीएस से, और या फिर अभी आप कल जाके अपना एआईएमएल स्टार्ट करोगे, तो वो ऑब्वियसली आपको उतना टाइम लगेगा। वो लोग थोड़ा पहले से कर रहे हैं तो उनको इग्नोर करो, वो थोड़े से बहुत थोड़े लोग होते हैं। आप अभी से स्टार्ट करो अपना पढ़ना, तो आप उन लोगों तक पहुंच जाओगे आराम से। नेक्स्ट जो इस लड़के का क्वेश्चन है कि सर मैं एमएल ऑप्स करूं, जेन एआई करूं, और मशीन लर्निंग करूं, क्या करूं। देखो मैंने, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे हो तो मैंने बहुत बार क्लैरिफाई किया है चीज। जो एआईएमएल है ना उसके मेनली 2 पार्ट होते हैं। एक तो मशीन लर्निंग होता है जिसको हम स्टैटिस्टिक के थ्रू मशीन लर्निंग होती है, जो मैथ हम जिसकी बात कर रहे हैं, साइकिट लाइब्रेरी यूज होती है, नमपाई पांडा यूज होती है, वो सब वो एक पार्ट है, ठीक है। जिसके बारे में मेरा कोर्स भी है, वो एक मशीन लर्निंग वाला होता है जो पुराने तरीके से काम करते थे मशीन लर्निंग। अब दूसरा पार्ट है इसका जेन एआई। जेन एआई में क्या होता है, इसमें डीप लर्निंग होती है, इसमें हमारे जैसे एजेंट्स भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, एलएलएम्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। तो इसमें बाकी ये सब चीज होती है इसके अंदर जेन एआई में। तो जैसे मैं अभी मशीन लर्निंग का कोर्स है ना मेरा, इसके बाद मेरा जेन एआई का भी कोर्स आएगा, मैं उसको सिंप्लीफाई करके जेन एआई भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो भाई पहले आप मशीन लर्निंग कर लो, मेरा 1-2 महीने में जेन एआई कोर्स भी आ जाएगा, आप उसमें से जेन एआई भी कर लेना। फिर दोनों चीज मिला के आपको टोटल पूरा एआई आ जाएगा, क्योंकि एआई का सिलेबस बहुत बड़ा है, एआई में बहुत कुछ है करने के लिए। तो वो सब चीजें कवर करने में टाइम लगेगा। तो आप अभी से एआईएमएल की अगर आप जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप पहले मशीन लर्निंग वगैरह कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको जेन एआई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको फोमो में डरने की जरूरत नहीं है, आपको जेन एआई और एमएल दोनों करना पड़ेगा, 1 बाय 1 करना पड़ेगा। उस चीज में टाइम लगने वाला है, ठीक है। हालांकि स्टूडेंट ने ये भी बोला है कि मेरे को 2026 तक के एंड तक पूरा एआईएमएल करना है, जो कि इजीली हो जाएगा। 6 मंथ में आप पूरा एआईएमएल कंप्लीट कर लोगे बहुत अच्छे से विद ऑल द प्रोजेक्ट, और अपना मशीन लर्निंग वाला भी और अपना जेन एआई भी आपका कंप्लीट हो जाएगा 6 मंथ के अंदर, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मशीन लर्निंग स्टार्ट करनी है। एमएल ऑप्स आपके लिए नहीं है, एमएल ऑप्स डेवऑप्स वाले बंदों के लिए है जो क्लाउड पे काम करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर वाली टीम में काम करते हैं, और मतलब डेवऑप्स वाले जो बंदे हैं उनके लिए एमएल ऑप्स है, तो आपके लिए नहीं है। अगर आप डेवलपर हो या डेटा साइंटिस्ट हो तो बनना चाहते हो, तो आपको उधर जाना है। और इसने मेंशन किया कि आपने बोला था डेटा एनालिस्ट वगैरह नहीं बनना है, तो डेटा एनालिस्ट इसलिए मैंने मना किया था, अगर आप टेक्निकल बंदे हो, आप इंजीनियर हो, तो डेटा एनालिस्ट आपके लिए, वो डेटा एनालिस्ट से बढ़िया है कि आप डेटा साइंटिस्ट की तरफ जाओ, उसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। जो डेटा एनालिस्ट है ना वो सेमी कोडिंग जॉब है, उसमें कम कोडिंग की जरूरत पड़ती है, उतनी हार्डकोर कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो मैंने उन स्टूडेंट को रेकमेंड किया था जिनका कोडिंग में कम इंटरेस्ट है, या फिर जो नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, थोड़ा बहुत कोडिंग करके वो अगर टेक में घुसना चाहते हैं, उनके लिए डेटा एनालिस्ट अच्छी प्रोफाइल है। लेकिन आप अगर प्रॉपर इंजीनियर हो, आप डीएस से कर रहे हो, इट मींस कि आपको
कोडिंग वगैरह आती है तो आई वुड सजेस्ट कि आप डेटा एनालिस्ट के जाओ, वो ज़्यादा बेटर और ज़्यादा रिवॉर्डिंग करियर होगा आपके लिए। तो डेटा एनालिस्ट बनो और उसमें अपना जेएनआई इंजीनियर बनो, ठीक है। तो ये जो मेरे दोनों कोर्स आएंगे इसके थ्रू आप कर सकते हो, या फिर आप कहीं से भी कर सकते हो, जेएनआई का भी आप कोर्स कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। तो मशीन लर्निंग और जेएनआई दो अलग चीज़ है, लेकिन दोनों आपको करनी है, तभी आप एक कंप्लीट एआई इंजीनियर बनोगे। नेक्स्ट इसका है कि टाइम मैनेजमेंट, कि सर मैं कॉलेज जाता हूँ और मेरा टाइम नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। भाई टाइम सबके पास 24 घंटे ही है, ठीक है। मैं अभी अगर ये वीडियो बताऊं, मैं अभी रात के कितने बज रहे हैं, अभी टाइम बताता हूँ कितना बज रहा है। ये देखो कितना बज रहा है टाइम, 4 बज रहे हैं अभी, सुबह के 4 बज रहे हैं अभी, ठीक है। संडे की सुबह, मतलब 4 बज चुके हैं सुबह के, ठीक है। पूरे दिन मेरे को टाइम ही नहीं मिला वीडियो रिकॉर्डिंग करने का। आपने देखा होगा कि बीच में मैं एक बार गाड़ी में बैठ के रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी थी मैंने। उस टाइम में सबको लगता था ट्रैफिक में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ट्रैफिक में नहीं करता था मैं, ऑफिस जाता था, पार्किंग में खड़ी गाड़ी में रिकॉर्डिंग करता था, क्योंकि मेरे पास घर में टाइम ही नहीं बचता था, मेरे पास बहुत सारी होती थी चीजें और बहुत सारी चीजें होती थी, ठीक है। तो भाई टाइम सबके पास वही है, आपको अपने जो कंफर्ट जोन है ना उससे हटना पड़ेगा आपको। अगर आपको थोड़ा सा कुछ लाइफ में चेंज करना है तो आपको जो लाइफस्टाइल है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आप एक स्टूडेंट होके भी आपके पास टाइम नहीं है ना, तो जिंदगी में आपके पास कभी टाइम नहीं होने वाला है। मैं फुल टाइम जॉब भी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सुबह सुबह एक मेंटरशिप कॉल भी है मेरी, जो टॉपमेट वाली कॉल्स भी होती है। फिर मेरे को अभी कोर्स की वीडियोज भी शूट करनी है, और यूट्यूब की वीडियो ये तो शूट करनी होती है। फिर जो फैमिली का काम है, बच्चे हैं 2, वो करना है, ऑफिस का काम है, सब कुछ है भाई, सब कुछ करना होता है। वो आप अपने तरीके निकालो कि कैसे करोगे, ठीक है। आपकी लाइफस्टाइल में आप ही निकाल सकते हो तरीका, और कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन मैं ये गारंटी कह सकता हूँ, जो स्टूडेंट लाइफ है वो कोई इतनी बिजी लाइफ नहीं होती है, उससे ज्यादा फ्री टाइम आपके पास लाइफ में कभी नहीं होने वाला है। अगर आप अभी भी टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, आप फ्यूचर में भी नहीं कर पाओगे। तो अभी से आपने, अगर आप कॉलेज के बाद आ रहे हो तो इधर उधर यूट्यूब और लिंक्डइन देखना बंद करो, चुपचाप अपना काम करो। और एक जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट की, ये एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये ना बहुत ज्यादा नॉइस पे ध्यान देता है। तो आपका ये स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूं, यार देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम ना सोच बहुत रहे हो और कर बहुत थोड़ा रहे हो, और जो कर रहे हो वो भी गलत कर रहे हो। डीएसए में तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो टोटली मेरे हिसाब से। सबसे पहले वेब डेवलपमेंट कंप्लीट करो, एक कोई प्रोजेक्ट बनाओ फुल स्टैक वाला उसके ऊपर बढ़िया सा। उसके बाद अपना मशीन लर्निंग और एआईएमएल पे ध्यान दो, जेएनएआई पे ध्यान दो, ठीक है। सिंपल कोर्स तुमने बाय कर रखा है मेरा, एआईएमएल वाला कोर्स कर लेना। उसके बाद तुम जेएनएआई वाला कर लेना, और कहीं से भी कर लेना जहां से भी करना है। डीएसए को सबसे लास्ट में रखो, 3rd नंबर पे रखो, क्योंकि तुम एक टायर 3 कॉलेज से हो। डीएसए तुम्हें उतनी कोई फैंग कंपनी सीवी शॉर्टलिस्ट भी नहीं करेगी। अब कोई कुछ स्टूडेंट आगे इसमें चैलेंज करेंगे कि आपने ये कैसे बोल दिया कि टायर 3 वाले को शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगी। देखो जो एक्सेप्शनल है ना वो हमेशा होते हैं एक्सेप्शनल, ठीक है। किसी का हो भी गया होगा कि टायर 3 वाले का सीवी शॉर्टलिस्ट हो गया, लेकिन 99% चांस है टायर 3 वाले का नहीं होगा जल्दी से सीवी शॉर्टलिस्ट फैंग कंपनी में। और जरूरी नहीं है ना आपको पहली जो भी फैंग में लेनी है यार। आप पहले अपनी जॉब तो ले लो यार, पहले कोई भी जॉब ले लो, टायर 3 से हो ना, पहले वेब डेवलपमेंट करके एक जॉब पकड़ लो, और साथ में फिर आप अप्लाई करते रहो। फैंग कंपनी कोई खत्म थोड़ी हो जाएंगी ना, कोई फैंग कंपनी हायरिंग बंद करेंगी कि भाई इसी साल हायरिंग हो रही है। अब जैसे मैं हूं, अगर मैं चाहूं तो मैं डीएसए वगैरह कर के मैं भी चला जाऊं फैंग में, लेकिन वो पूरी लाइफ में आप कभी भी जा सकते हो ना फैंग में, अगर जिसको जाना है। जिसका इंटरेस्ट नहीं है उसको नहीं है, लेकिन जिसको जाना है वो फैंग में कभी भी जा सकता है। तो पहली जो प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए वो जॉब लेने की होनी चाहिए। जो आप फ्रेशर हो तो आपके लिए जॉब शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद आपको जो भी फैंग कंपनी करनी है, आपको नासा में जाना है, आपको चांद पे जाना है, उसके बाद यार स्टेप बाय स्टेप आप इंप्रूव करते रहो, लर्निंग करते रहो, चलते रहो आगे, ठीक है। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ स्टूडेंट के लिए। देखो आपको डीएसए छोड़ना है, सबसे पहले वेब डेवलपमेंट कंप्लीट करना है, फुल स्टैक डेवलपमेंट वाला चीज, ठीक है। उसके बाद आपको जेएनएआई और एआईएमएल दोनों चीज करनी है। फिर अब टाइम बचे तो डीएसए कर लेना है, डीएसए को कम प्रायोरिटी दो, सबसे लास्ट दो, क्योंकि अब टायर 3 से हो, ठीक है। और आपको ज्यादा एक फोमो में नहीं आना है, और ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी कि सब कुछ कर रहे हैं। इतना सब कुछ कोई नहीं कर रहा है, सब लोग परेशान ही है। मेरे से सब टॉपमेट पे मेरे को स्टूडेंट मिलते रहते हैं, तो मेरे को पता है कि ज्यादा अभी कोई अवेयरनेस नहीं है एआई में, तो सब लोग सेम लेवल पे अभी ज्यादा वो नहीं है। तो आप इजीली आप टॉप 1% में चले जाओगे आप अगर एआईएमएल कर लोगे तो आपको इतने इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। 6 मंथ का अपना रोड मैप बनाओ, 2 मंथ्स में सबसे पहले वेब डेवलपमेंट खत्म करो, 2 मंथ्स में अपना एआईएमएल खत्म करो, और 2 मंथ्स में अपना जेएनएआई है वो खत्म करो। आपको 6 मंथ में आराम से हो जाएगा। उसके बाद अच्छे से प्रोजेक्ट बनाओ, और आपको डाउट हो उसके बाद कुछ सर्टिफिकेशंस करने हैं, कुछ करने हैं ना, वो फिर आप मेरे से ये तीनों चीज कंप्लीट कर लेना। उसके बाद मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना, मैं आपको प्रॉपरली आपके जो प्रोफाइल होगी उसके हिसाब से गाइड करके आपको जॉब हंटिंग कैसे करनी है, सब और सीवी कैसे बनाना है, और जो फिर वो पूरी जॉब हंटिंग स्पेसिफिक बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो आप पहले लर्निंग कर लो, उसके बाद आप मेरे से कनेक्ट करना, आई विल गाइड यू प्रॉपरली। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको इस ईयर में आपको सब कुछ हो जाएगा। 1 by 1 चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो,
आप ज्यादा एकदम सोच ज्यादा रहे हो, एक्ट कम कर रहे हो और गलत डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप चलो, आप अचीव कर लोगे आराम से। आप 6 मंथ के अंदर सब कुछ कर लोगे और जॉब भी लग जाएगी आपकी। अक्टूबर में जो हायरिंग का टाइम आता है वहां तक आपको 6 मंथ में, सितंबर तक आपका 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। अक्टूबर नवंबर से आप हायरिंग में बैठ सकते हो आराम से, ठीक है। तो यही था मैसेज इस वीडियो में स्टूडेंट के लिए, और स्टूडेंट को भी आई होप कि गाइडेंस मिली होगी बहुत सारी इस वीडियो से। वीडियो बहुत बड़ा बन गया है, ठीक है, तो बट आई थॉट कि एक इसको डिटेल में एक स्टूडेंट को एक रिप्लाई देता हूँ जिससे कि इसको थोड़ी गाइडेंस मिले, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स को किसी को भी अगर कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मेरे को रीच आउट कर सकते हो फ्री में, जो मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा वहां पे, ठीक है। कोई डिटेल्ड अगर किसी की बहुत ज्यादा डिटेल्ड होती है कुछ होती है तो मैं उसको बोलता हूँ टॉपमेट पे आप कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो मोस्टली मैं वहां पे ही आपकी मोस्ट ऑफ द क्वेरीज आपको वहां पे सॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको मेरा AML कोर्स बाय करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्स्ट्रा 500 नाम से कूपन कोड भी है जिससे कि आपको 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।